بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیاری سسٹرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی اور رمضان آپ کا بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا۔ تو آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں، اور آج ہے ہمارا رمضان سیریز کا ڈے 11، جس میں میرا شیخ سسٹر اپنا ایک ٹاپک ہمارے ساتھ شیئر کریں گی۔ تو چلیے، توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹکھٹاہٹ سے کھلتا ہے، تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑی ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی انشاءاللہ اور راستے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے ہی ایک سفر ایسے ہی اپنے رب سے جڑنے کے اس سفر کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گی سسٹر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے اس سفر سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو اسی طرح سے بنانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے سسٹر شروع کیجیے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ، اما بعد، اللہم زدنی علما، اللہم زدنی علما۔ میں سورہ البقرہ آیت نمبر 138 تلاوت اور تفسیر بولتی ہوں انشاءاللہ۔ صبغۃ اللہ ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون۔ صبغت اللہ، صبغت اللہ کا مطلب ہے کالا یا گورا رنگ نہیں ہوتا، اس سے مراد اللہ کا دین ہے۔ رنگ صرف لباس کا نام نہیں ہے، پوری پرسنالٹی کا نام ہے۔ انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا لینا دینا اور کھانا پینا سب کے سب دین کے مطابق دھیرے دھیرے بدلتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے دین میں پوری طرح داخل ہونا، مگر یہ تبدیل پیارا اور آسان طریقے سے ہونا چاہیے، بوجھ بن کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت کیسا آتا ہے، کب آتا ہے اور کس شکل سے آتا ہے، یہ مجھے اس النور قرآن اکیڈمی جوائن ہونے سے پہلے بالکل معلوم نہیں تھا۔ آج میں جو کچھ بھی شیئر کر رہی ہوں وہ میرے تعریف کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے میرے زندگی کو کیسا راستہ دکھایا اس ہدایت کی کہانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میرا آندھرا تلنگانہ سے ہوں۔ یہاں عام طور پر مسلمان ہونے کا مطلب ہے اردو آنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جو اردو نہیں جانتی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کبھی کبھی چاہے بات بالکل ٹھیک ہو پھر بھی جیسے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تمہیں کیا پتا۔ میں یہ بات کسی پر الزام کے طور پر نہیں
बल्कि ये मेरी एक्सपीरियंस के तौर पर कह रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक सेंसिटिव हिस्सा है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ मैं ये समझी कि कमी को छुपाने से नहीं, बल्कि सीखने से चीज़ें बदलती हैं। शादी के बाद शादी के बाद ही नहीं, मैं छोटा-सा फैसला की नहीं, मुझे उर्दू पूरी तरह आती या नहीं आती, मैं अपने बच्चों से उर्दू में ही बात करूँगी। आज अल्लाह की फ़ज़ल से मेरे बच्चे 3 ज़बान में बात कर सकते हैं। ये मेरे लिए सिर्फ़ लैंग्वेज नहीं, अल्लाह की मदद, एहसास है। मैं मैं अपने परेशान बयान करने के लिए नहीं बोलती हूँ। अल्लाह सुब्हाना तआला के रहमत को याद करने के लिए कह रही हूँ। मुझे इस अल-नूर कुरान अकादमी के बारे में मुफ्त में तजवीज़ सिखाते और सर्टिफ़िकेट भी देते। इसके बारे में मालूम हुआ तो दिल में एक डर भी था। क्यों? क्योंकि मेरा मदर टंग तेलुगु है, उर्दू ज़बान उतनी नहीं जानती मैं। और तब मेरे शौहर ने मुझे एक बात कही, आज की दुनिया में सिर्फ कहने से बात साबित नहीं होती, हम जिंदा हैं इस बात का भी सबूत सरकारी कागजों से होती है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पान कार्ड वगैरह। इसी तरह अगर तुम कुरान को दिल से सीखना चाहते हैं या किसी को सिखाना चाहते हैं तो हमारा मेहनत का भी एक पहचान होना चाहिए। पहले मुझे लगता था सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा है, लेकिन धीरे-धीरे समझ आया कि ये कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि मेरे मेहनत, मेरी हिम्मत और अल्लाह की फज़ल की निशानी है। मेरे शौहर ने मुझे कहा, "उम, इल्म सिर्फ दिल में नहीं, पहचान के साथ भी होना चाहिए।" जब मैं पहली बार जनवरी 10, 2024 में ज़ूम मीटिंग क्लास में क्लास जॉइन की मैं, तब मेरे मकसद है सिर्फ एक ही था, सर्टिफिकेट हासिल करने का। लेकिन जॉइन क्लास करने के बाद है नहीं मुझे छोटे-छोटे बात भी समझ आने लगी है। पहले तो तजवीज़ क्लास में मुझे हुर्फ़ा बोलना बहुत मुश्किल लगता था। हमारी तजवीज़ मैम है, रोज़ी मैम ने है नहीं ईज़ी से बहुत ईज़ी तरीके से हमला तो सिखाए। यही क्लास में मैं ताउज़ और तस्मीया और सूरह फ़ातिहा भी यहाँ सीख लेने मैं। हमारी रोज़ी मैम है नहीं कब भी एक दुआ पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छी लगता है। वो क्या बोले तो या मुकल्लिबुल कुल्बी सब्बित कल्बी अला दीनिक, जिसका मतलब है या अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। और दूसरी बात भी बोलती हूँ नो इखलास से, कोई भी नेक अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करो। ये 2 बातें हमारे मैम बोलते हैं तो मैं फर्स्ट बार उन्हों को मुझसे सुनी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा कहा था भी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तजवीज़ लेवल 1 ने कामयाब के साथ ही कंप्लीट की मैं। जब वो मेरे हाथ में मेरे सर्टिफिकेट आए तो मेरे खुशी को हद ही नहीं। मेरा पहले सर्टिफिकेट है नहीं मैं फ्रेम करवा कर घर के दीवार पर लगाई मैं। रोज़ उसे देखकर तो मुझे महसूस होता है और ज़्यादा सीखने का जज़्बा मेरे अंदर पैदा होता है। इस हौसले के साथ मैं यहाँ यहाँ पहली बार सूरह अल बकरा तर्जुमा और तफसीर क्लास भी जॉइन की मैं। अभी वही क्लास में हूँ, तर्जुमा क्लास मैम। मैम शाजिया मैम, मैं आपको मेरे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्यों? क्यों बोले तो वो मैम है नहीं हर स्टूडेंट को सब्र के साथ मौका देती और छोटी-सी गलती हो प्यार से ठीक कर दी थी। तो उन्हों की वजह से हम अरबी के लफ्ज़ भी मानी समझ आने लगी है। यही क्लास में मैं सलाम बोलने का भी तरीका सीख ली मैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ तो हाँ, वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पूरा तरीके के साथ भी मालूम हुआ उसका मानी भी। और तफसीर क्लास रोज़ी मैम है, उन्होंने समझाते हैं तो हमें जाते तो ऑनलाइन क्लास है, लेकिन मुझे लगता था मैं ऑफलाइन क्लास में हूँ। ये 2 टीचर्स को देख के तो मुझे एक हदीस भी याद आती है। वो क्या बोले तो ये एक मुसलमान दूसरा मुसलमान का भाई है। ये बात सिर्फ तो कहने तक नहीं बल्कि मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी में भी महसूस की मैं। यहाँ मैं और एक बात प्राउड से कहना चाहती हूँ। इस अल-नूर कुरान अकादमी में मैं आलिम कोर्स भी कर रही हूँ। आज के दौर में एक शादीशुदा औरत घर बैठे आलिम कोर्स कर पा रही है तो ये अल्लाह का करम है, जो सोशल मीडिया के भी एक अच्छा-सा फ़ायदा है।
इस कोर्स के ज़रिए मैं बहुत नई-नई बस बातें सीखते आ रही हूँ। दूसरों को भी सिखाती हूँ। यहाँ मेरे लिए मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पता नहीं क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी मेरे दिल को बहुत छू जाती है। शायद इसी वजह से कुरान पहले से ज़्यादा अच्छी समझ में आने लगी है। इस आलिम कोर्स के तमाम टीचर्स भी हम लोग बहुत अच्छा समझा को पढ़ाते हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला जब किसी को हिदायत देता है तो कब, कैसे और किस ज़रिए से आएगी, यहाँ हम सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ कोई परफेक्ट बनकर नहीं आई थी, बस सीखने का जज़्बा लेकर आई थी। आज मैं इतना ही कहूँगी, जो इल्म कभी मुश्किल लगता था, आज वही मेरे लिए आसान और प्यारा हो गई। यहाँ मुझे अब तक समझ में आया तो बात क्या बोले तो इस्लाम ऑप्शन नहीं, इस्लाम सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस साल कुरान अकादमी मुझे नया रास्ता दिखाया और हिम्मत भी दी। मेरे मदर टंग तेलुगु है, लेकिन अगर मेरी तरह कोई भी इस प्रॉब्लम में हो तो मैं हमेशा अल-नूर कुरान अकादमी के साथ खड़ी रहूँगी, इंशाअल्लाह। अपनी तरफ जितना भी मदद हो सकेगी मैं पूरी दिल से करती रहूँगी। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको हमेशा सेहत, सब्र और खुशी अता फरमाए। इस अल-नूर कुरान अकादमी को और ज़्यादा बरकत दे और यहाँ से पढ़ने वाले हर बहन को दिल में और नूर और हिम्मत पैदा करें। हम सबको अपने दीन पर क़याम रखें और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दें। आमीन या रब्बुल आलमीन आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह।